Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, Jyoti. I'll wait for 2 minutes and then we will begin. Good morning, everyone. Kiran, Reema, and everyone. Let's start with the lecture now. So, this is the sum we will do today. Aqua Engineers Limited, a newly formed company, acquired business of Beta Limited. So Aqua Engineers Limited is a newly formed company which has acquired the business of Beta Limited as on 31/3/2017. The summary balance sheet of Beta Limited as on that date will be as under: equity shares of rupees 10 each, fully paid is 1,50,000, means 15,000 shares. General reserve 25,000. There is export profit reserve, which is a statutory reserve. So statutory reserves are to be maintained for few number of years as given in the question. And if not given, then also we will pass an entry for this in the in the new books. I'll show you that. And then we have profit and loss account, 12% debentures, creditors, provision for tax, asset side, goodwill, land and building, plant, investment, stock, debtor, bill receivable, and bank balance. Terms of amalgamation: Aqua Engineering Engineers Limited issued 25,000 equity shares of rupees 10 each at rupees 12 per share. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाला है एज पीसी डायरेक्टली गिवन 25,000 equity shares of rupees 10 each at rupees 12, and Aqua Engineers Limited paid rupees 4 in cash for each share of Beta Limited. So
दो चीज मिला है परचेज कंसिडरेशन में, 25,000 इक्विटी शेयर्स मिला है 10 रुपीज का 12 रुपीज में, और मिला है ₹4 इन कैश फॉर ईच शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड, एक शेयर के लिए 4 रुपया कैश में। तो हमारे पास तो कंपनी में 15,000 शेयर्स है, तो 15,000 इंटू 4 करेंगे तो पीसी इन कैश कितना है वो पता चल जाएगा। एंड पीसी इन शेयर्स कितना है, 25,000 इंटू 12, 10 रुपए का शेयर है, बट 2 रुपीज प्रीमियम में मिल रहा है। तो इन विद दिस विल अंडरस्टैंड the amount of purchase consideration when we will add the amount of first point and second point, we will get the परचेज कंसिडरेशन। ये सब में ओनली इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, तो परचेज कंसिडरेशन सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। एंड देन एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड डिस्चार्ज्ड 12% debentures of Beta Limited at 10% प्रीमियम। तो बीटा लिमिटेड के डिबेंचर्स को जितना है 60,000, उनको 10% प्रीमियम में मिलेगा शेयर डिबेंचर्स। सो 60 प्लस 10% प्रीमियम विल बी 66,000 के लिए उनको मिलेगा 15% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। मतलब 100 रुपीज का डिबेंचर डिस्काउंट ऑफ 12% मीन्स 88 रुपीज में मिलेगा। 100 minus 12% करो, you will come to know that the normally if debentures face value is not given, we can assume 1 rupees, sorry, we can assume 100 rupees per debenture if the face value is not given. So अगर 12% डिस्काउंट है तो 88 रुपीज विल बी द अमाउंट इशू प्राइस। Aqua Engineers Limited paid absorption expenses ₹3,000. Absorption expense मतलब realization expense is being paid by the new company, तो new company के books में आएगा। Aqua Engineers Limited revalued land and building at 1 lakh, plant at 10% below book value, stock at 35,000, debtors subject to 5% provision. बाकी सबका we will take the book value whose value is not given. फिर बीटा लिमिटेड sold 1/5 of the shares received from Aqua Engineers Limited at ₹13 per share. So 4/5 रिटेन किया, 1/5 सेल किया। जो शेयर्स मिला एक्वा इंजीनियर से, जो भी इक्विटी शेयर्स मिला एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड से, बीटा लिमिटेड ने क्या किया, 1/5 जो भी शेयर्स मिला वो सेल किया 13 रुपीज में, एंड बाकी का रिटेन किया। Aqua Engineers issued 10,000 equity shares of ₹10 each at ₹12 each to the public. The issue was fully subscribed. Aqua Engineers are new company, तो उन्होंने पब्लिक को जो शेयर सेल किया उनके कंपनी के बुक्स में आएगा। फिर ऐसा है, टोल्ड यू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को और भी 3 years हमें मेंटेन करना है। You are required to calculate purchase consideration, prepare realization account, Aqua Engineers Limited account, equity shareholders account, equity shares in Aqua Engineers account, and bank account in the books of Beta Limited. So हमें PC calculate करना है, इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड ये सब अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। फिर हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड का आफ्टर एक्विजिशन अंडर परचेज मेथड। सो लेट अस कैलकुलेट द पीसी फर्स्ट। तो इक्विटी शेयर्स में कितना है, इक्विटी पीसी में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स है, सो सिर्फ उनको ही पीसी मिलेगा। इन इक्विटी शेयर्स कितना मिलने वाला है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे हैव टोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपीज का 12 रुपीज में, 25,000 10 रुपीज का 12 रुपीज में मिलने वाला है।
सो यहाँ पे वी कैन राइट ब्रैकेट में 25,000 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो. हाउ मच यू गेटिंग? 25,000 इंटू 12 कितना मिल रहा है इन कैश? कैश में भी मिल रहा है पीसी. देखो व्हाट दे टेल, ₹4 इन कैश फॉर ईच शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड. ₹4 मिलेगा एवरी शेयर, ईच शेयर. और टोटल शेयर्स कितना है बीटा लिमिटेड में? 1,50,000 डिवाइड बाई 10 करो बिकॉज वन शेयर इज ऑफ ₹10. 1,50,000 डिवाइड बाई 10, नंबर ऑफ शेयर्स इज 15,000. तो हर एक शेयर के लिए ₹4 कैश मिलने वाला है. सो 15,000 into 4 will give us the amount of 60,000. तो हमारा पीसी हो जाएगा हाउ मच? एड बोथ 3,60,000 will be our PC. 3,60,000 will be our PC. अब in the books of बीटा लिमिटेड what are we told to prepare? हमें ये सब अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो let us come here. Realization account, they have told realization account. Aqua Engineers, this is the purchasing company account. Equity shareholders account, equity shares in Aqua Engineers account and bank account. ये सब accounts हमें prepare करना है. तो हमारा पहला step है to various assets. To various assets. तो अभी हम क्या करेंगे? We will take all the assets. सारा assets ले लिया हमने और यहाँ पे लिख लिया. सारा assets लिख लिया. अभी क्या करेंगे? We will write. हम क्या करते रियलाइजेशन में? हमारा पहला स्टेप है सब assets डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में लिखना. फिर सब लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में लिखना. करेक्ट? पहले हमने सब असेट्स लिखा टू वेरियस असेट्स अकाउंट. अभी हम सब लाइबिलिटीज लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय वेरियस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज चाहिए हमें. लाइबिलिटीज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. करेक्ट? तो लेट अस सी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़ के. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हमारे पास 3 है. ये तीनों को कॉपी किया. ऊपर का शेयर्स है और 3 रिजर्व्स है. रिजर्व्स एंड शेयर्स आर इंटरनल लाइबिलिटी. सो हमें तो सिर्फ एक्सटर्नल चाहिए. सो लिख लिया. अब इसका अमाउंट भी लिख लेते हैं. ये तीनों का अमाउंट भी लिख लेते हैं. ओके. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हम इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स ये सबका सब तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा. उनका कैपिटल ये मैं सिर्फ कॉपी करती हूँ बिकॉज ऊपर का तो बाई बैलेंस करके लिखना है. देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल मिलेगा 1,50,000. फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का जो भी रिजर्व है वो मिलेगा. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट हमने बनाया है. तो उसमें बिकॉज इट्स अ लाइबिलिटी हम लिखेंगे बाय बैलेंस बॉट डाउन. कितना है ये? 1,50,000. फिर हम जो रिजर्व्स है 3 वो तीनों रिजर्व्स लिख लेंगे. तो उसमें भी आगे क्योंकि क्रेडिट साइड है हमें क्या करना पड़ेगा? बाई से सेट करना पड़ेगा. क्रेडिट साइड है तो ये होने के बाद लेट अस राइट द अमाउंट ऑफ द 3 रिजर्व्स.
कितना अमाउंट है लिख लेते हैं, 25,000, 8,000, 18,000. So I will write the reserves. So this is also done. Abhi what I will do, I will write the PC by PC due. लेकिन किसका नाम लिखेंगे? Who is the purchasing company? Aqua Engineers Limited. और ब्रैकेट में PC due. What is the amount of PC? Do you remember the amount of PC? 3 lakh in shares and 60,000 in cash. 3,60,000. फिर एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड में बाई का हो जाएगा 2 realization account. 2 realization account हम लिखेंगे 3,60,000. ये भी हो गया. अभी ऐसा कोई असेट है जो नया कंपनी नहीं लेके जा रहे? There is no such asset which the new company is not taking over. तो हम क्या करेंगे? हम रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने से पहले लेट अस डू वन थिंग. लेट अस डिस्चार्ज पीसी क्या मिला है वो न्यू कंपनी में लिखते हैं. पीसी में मिला है वो तो हमने ऑलरेडी नेट पेमेंट मेथड है, तो हमें अलग से डिस्चार्ज और पीसी करने का जरूरत भी नहीं है. इक्विटी शेयर 3 लाख और कैश में 60,000. सो ये हम डायरेक्टली डिस्चार्ज ऑफ पीसी, ये अकाउंट हमारा बंद हो जाएगा. तो वी विल राइट हियर बाय इक्विटी शेयर्स in what is the name? Aqua Engineers Limited. कितना है इक्विटी शेयर्स इन एक्वा इंजीनियर्स? इट इज 3 lakhs. फिर उसके बाद क्या है, क्या और दिया? 4 रुपया कैश दिया एवरी शेयर के लिए, तो वो है 60,000. सो हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट इफेक्ट, ये अकाउंट तो टैली हो गया. 3,60,000 एंड 3,60,000 ये तो टैली हो गया. अब बाई इक्विटी शेयर्स हो जाएगा 2, ऑपोजिट अकाउंट का नाम. इक्विटी शेयर्स इन एक्वा इंजीनियर्स में ऑपोजिट अकाउंट का नाम एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड अकाउंट. कितना? बाई का 2, 3 lakhs. और कैश बैंक का भी सेम लिखेंगे, वही अकाउंट से आया है ना. सो सेम वी विल राइट, बट कैश बैंक कितना है? इट इज 60,000. सो ये भी हो गया. अभी क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो शेयर्स मिला ना, बीटा लिमिटेड सोल्ड 1/5 ऑफ द शेयर्स. मतलब जितना भी शेयर्स मिला उसमें 1/5 शेयर्स बीटा लिमिटेड ने क्या किया? सेल किया. बीटा लिमिटेड ने सेल किया. कितने रुपीस में? 13 रुपीस पर शेयर में. 13 रुपीस पर शेयर में सेल किया. मतलब बीटा लिमिटेड को 3 लाख का शेयर्स मिला एक्वा इंजीनियर से. सो इट इज टोल्ड दैट बीटा लिमिटेड को एक्वा इंजीनियर से जितना शेयर्स मिला उसमें से 1/5 उसने सेल किया. उसने सेल किया. तो यहाँ पे देखो जरा, 1/5 शेयर सेल किया. सेल करेंगे 13 रुपीस में तो पैसा आएगा. तो यहाँ पे लिखते हैं बाई कैश बैंक अकाउंट. कितना? जितना नंबर ऑफ शेयर्स मिला 25,000, उसमें से 1/5 सेल किया. कितना रुपीस में? 13 रुपीस में. कैसे पता? 25,000 शेयर पहले लाइन में दिया है. 25,000 शेयर एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड ने इशू किया.
सो देखो जितना शेयर्स एक्वा इंजीनियर से मिला उसका 1/5 बीटा लिमिटेड ने सेल किया 13 रुपीज में. So can anyone tell me how much is this coming to? Buy cash ban 25,000 into 1/5. Buy cash ban 25,000 into 1/5. How much is it coming? 25,000 into 1 divided by 5, that is 5,000 शेयर सेल किया कितना रुपीस में? 13 रुपीस में. तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ यू आर गेटिंग 65,000 और बचा हुआ जो शेयर है वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में आएगा. इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? इट इज अ प्रॉफिट ना. आपको 12 रुपए में जो शेयर मिला वो आपने 13 रुपए में सेल किया. 12 रुपए मुझे किधर से समझ में आया? लुक एट द पीसी. 25,000 into 12 is equal to 3 लाख. हमें 25,000 इक्विटी शेयर मिला 10 रुपए का 12 रुपए में. मतलब यहाँ पे हमने जब थर्ड पर्सन को ये शेयर बेचा तो हमें 1 रुपीज का प्रॉफिट आया. प्रॉफिट मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में आना चाहिए. तो उसका दूसरा इफेक्ट इधर रहेगा. 2 से बाई में जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट का एंड इट इज अ प्रॉफिट बिकॉज 12 रुपीज का शेयर मैंने 13 रुपीज में सेल किया. तो 5,000 शेयर्स पे मुझे 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ. तो हाउ मच इज इट कमिंग टू? इट इज कमिंग टू 5,000 और 2 रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी 2 रियलाइजेशन इधर हो जाएगा बाय इक्विटी शेयर्स इन एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड. ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर है ऑफ शेयर्स. कितना अमाउंट है? ये 5,000 है. ये हमने ऑपोजिट इधर 2 रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है प्रॉफिट. तो 2 से उधर बाई में जाएगी. इधर 13 के हिसाब से रिकॉर्ड किया तो इधर 12 के हिसाब से रिकॉर्ड किया. तो 1 रुपीज का डिफरेंस तो डेबिट में है ना. यहाँ पे ये 5,000 शेयर को 13 रुपीज के हिसाब से रिकॉर्ड किया है और यहाँ पे 3 लाख में ये 12 रुपीज के हिसाब से रिकॉर्डेड है. तो इधर ही डिफरेंस है 1 रुपीज का, वो हमने एडजस्ट किया. अब ये अकाउंट को इसका एक दूसरा इफेक्ट है बाई कैश बैंक का ऑपोजिट 2 इक्विटी शेयर्स इन, पूरा लिखने में टाइम लगता है. 2 इक्विटी 2 इक्विटी शेयर्स इन एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड. कितना अमाउंट आया है हमें? 65,000. कितना आया? 65,000. ये हो गया. इसका हमने सारा इफेक्ट्स पास किया. अब क्या करेंगे हम? ये अकाउंट को बंद करेंगे. यहाँ पे आएगा 3,05,000. इधर भी आएगा 3,05,000. तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? हाउ मच इज द डिफरेंस कमिंग टू? 2,40,000. ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है. इतना शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बीटा, मतलब इतना बीटा लिमिटेड ने शेयर्स रखा, इतना 1/5 बेचा तो 4/5 रखा. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स में बाई का ऑपोजिट 2 है. 2 इक्विटी शेयर्स इन एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड. कितना अमाउंट है?
it is 2,40,000 opposite effect. इधर बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स, इधर ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू इक्विटी शेयर्स इन एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड. दिस इज ऑल्सो डन. अब क्या करेंगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे. अब क्या करेंगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करेंगे. तो रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने से पहले ये कैश बैंक अकाउंट को बंद कर ले. कैश बैंक अकाउंट को, इधर जो भी बैलेंस आएगा वो किसको मिलेगा, हमारे पास 1,25,000 का कैश है. हमारे पास 1,25,000 का कैश है. कैश किसको मिलना चाहिए, कंपनी बंद होगा तो जो भी कुछ एंडिंग में बचता है वो सब ओनर को मिलना चाहिए. और ओनर कौन है, ओनर है बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये हमारा अगेन बैलेंसिंग फिगर. तो बाई का ऑपोजिट 2 में लिखेंगे कैश, टू कैश बैंक अकाउंट. कितना कितना मिला, ऑपोजिट ऑपोजिट 2, उधर बाई में इधर 2 में 1,25,000. अभी क्या बाकी है हमारे, सॉरी गलत जगह पे लिख दिया, गलत जगह पे लिख दिया. वो अकाउंट ऑलरेडी टैली हो गया है, गलत जगह पे लिखा, तो सही जगह पे लिखो. अभी हमारे पास क्या बाकी है, दो ही अकाउंट को बैलेंस करना बाकी है. ये कैश बैंक भी बैलेंस हो गया, इक्विटी शेयर्स इन एक्वा लिमिटेड, एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड सब बैलेंस हो गया. तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करो. देखो क्रेडिट हैवी है या डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स का कौन सा साइड, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट का कौन सा साइड हैवी है, which side is heavy, credit is heavy. So 60 plus 37 plus 30 plus 3,60,000 plus 5,000 is giving me 4,92,000, is giving me 4,92,000. इधर जो भी बैलेंस आएगा, प्रॉफिट आने दो लॉस आने दो, जो भी है इट विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. सो कितना बैलेंस आ रहा है, जस्ट चेक कितना बैलेंस आ रहा है. इट इज कमिंग टू 1,64,000. मतलब जब हमारा क्रेडिट साइड हैवी होता है तो इट इज प्रॉफिट, क्रेडिट ज्यादा है तो इट्स अ प्रॉफिट. सो हम क्या करेंगे, हम 2 का ऑपोजिट बाई रियलाइजेशन ऑपोजिट अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट. चाहिए तो इधर ब्रैकेट में फिर लिखते हैं इट्स अ प्रॉफिट. सो कितना अमाउंट आ रहा है, इट इज 1,64,000. अब इसके बाद देखो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारा सम करेक्ट है. तो ये कितना आ रहा है टैली होके, इधर आ रहा है 3,65,000. जरा देखो इधर भी 3,65,000 आता है, 1,50,000, 25,000, 8,000, 18,000, 1,64,000. It is coming to 3,65,000. With this we can say that the sum is correct, equity shareholders account is tallying. तो ये हो गया. अब इसमें क्वेश्चन में हमसे एक और चीज पूछा गया है, that is the balance sheet. सो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, रोमन 1 हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज के बाद ये इक्विटी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें हम प्रिपेयर करते हैं स्मॉल ए शेयर कैपिटल, और सेकेंड वन होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस. हमसे सिर्फ बैलेंस शीट पूछा है, हमसे जर्नल एंट्री नहीं पूछा,
तो हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें नोट्स टू अकाउंट्स है, नोट्स टू अकाउंट कि कितना शेयर कैपिटल है, कितना रिजर्व्स एंड सरप्लस है। वो करने से पहले हम वर्किंग नोट में जाते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट में हमें जो एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड ने जो भी कुछ असेट्स टेक ओवर किया है, लाइबिलिटीज टेक ओवर किया है, हमें वो सब चीज तो पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते, बिकॉज हमें ये नहीं दिया हुआ है कि हाउ मच असेट्स, कौन रिवाइज वैल्यू, एक एक करने से अच्छा हम लोग टेक ओवर ऑफ असेट्स का एंट्री करते, असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट शोइंग assets and liabilities taken over, liabilities taken over, इसको नेट असेट भी बोल सकते, टेकन ओवर। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब असेट्स का जिसका नया वैल्यू दिया है उसका नया वैल्यू लेंगे, जिसका नया वैल्यू नहीं दिया उसका जूना वैल्यू, नया वैल्यू नहीं दिया उसका बुक वैल्यू, दैट इज बैलेंस शीट वैल्यू लेंगे। सो पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, ये ऐसे वो बराबर से दिखेगा, नहीं तो एक के नीचे एक बराबर से नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, क्वेश्चन में जितना भी सारा असेट्स दिया है वो पूरा मैं लिखने वाली हूँ, क्योंकि सारा असेट्स लेके गया है नया कंपनी, एक्वा इंजीनियर सारा असेट्स लेके गया है। तो मैं यहाँ पे सारा असेट्स लिखने वाली हूँ। इसके बाद मैं ओल्ड वैल्यू पहले लिखूंगी, फिर नया वैल्यू जैसे रिवाइज जैसे बोला है वैसे लेंगे। तो क्या करते हैं, पहले तो पूरा ओल्ड वैल्यू ले लेते हैं, फिर नया वैल्यू बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जर्नल एंट्री पूछा होता ना तो टेंशन ही नहीं था। जर्नल एंट्री में नया कंपनी के जर्नल एंट्री में सब आ जाता है कि हम लोग बिजनेस परचेज का एंट्री पास करते हैं, फिर असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर का एंट्री पास करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है एवरी एसेट का नया वैल्यू क्या है जो बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखते हैं किसका नया वैल्यू दिया है। नया वैल्यू किसका दिया, लैंड एंड बिल्डिंग का दिया है। जरा एडजस्टमेंट में जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 5 में लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 1 लाख, तो लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया है वो ले लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू है 80,000 से 1 लाख। एंड एक चीज ध्यान में रखते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व उस वो बैलेंसिंग फिगर रहेगा। अगर हमारा लाइबिलिटी हमने अगर ज्यादा पे किया है, असेट का वैल्यू कम है और ज्यादा पे करते हैं, तो हम गुडविल के लिए, कंपनी के रेप्यूटेशन के लिए देते हैं। अगर हम कम पैसा, द न्यू परचेसिंग कंपनी अगर जितना असेट का वैल्यू उससे कम पे करती है, क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो वो कैपिटल रिजर्व रहेगा, डेबिट में डिफरेंस आएगा तो वो क्या रहेगा, वो गुडविल रहेगा। इसलिए मैं गुडविल का अभी कुछ हम लोग नहीं देखते हैं। नाउ लेट अस सी अदर असेट्स किसका नया वैल्यू दिया है। इसके अलावा आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एट 10% बिलो बुक वैल्यू, मतलब 10% वैल्यू कम हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का 10% वैल्यू कम हुआ है। स्टॉक 35,000 है, डेटर में 5% प्रोविजन है, बस हमें यही करना है। स्टॉक 35,000, स्टॉक का नया वैल्यू दिया है 35,000, और यहाँ पे प्लांट को बोला है 10% वैल्यू कम करो, तो 80,000 माइनस 10% करो, कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे 72,000 आ रहा है सबको। हमने 10% वैल्यू कम किया, और डेटर में भी आरडीडी है 5% का, सो 50,000 माइनस 5% आरडीडी कितना होता है, 5% आरडीडी माइनस करेंगे तो 5% आरडीडी
माइनस करेंगे तो इट इज कमिंग हाउ मच, 2500. इज इट कमिंग 2500? सो ये हो जाएगा 47,500. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये गुडविल का वैल्यू अभी हमें क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ये गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व दोनों में से एक ही होना चाहिए. ध्यान में रखो, या तो गुडविल होना चाहिए या तो कैपिटल रिजर्व, दोनों नहीं होगा. तो हम लोग गुडविल को अभी ब्लैंक रख लेते हैं, उसका नया वैल्यू या तो आएगा या तो गुडविल होगा ही नहीं. लेट अस सी नाउ व्हाट विल हैपन. गुड, तो इसको हम टोटल करेंगे, उसके बाद हमें मिलेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे लेस करना है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, जाते हैं क्वेश्चन में. हमें पता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में हमारे पास ये 3 चीज है. इसमें से डिबेंचर का नया वैल्यू दिया है, तो हम वो नया वैल्यू, पहले ओल्ड वैल्यू लिखेंगे, नया वैल्यू बाद में लिखते हैं. फिर ये उनका अमाउंट ले लेते हैं. रियलाइजेशन में हम सिर्फ बुक वैल्यू लिखते हैं, नया वैल्यू हम पीसी में लिखते हैं, बराबर. और नया नया कंपनी जो वैल्यू में असेट्स एंड लाइबिलिटीज को लेके जाएगा वो वैल्यू में लिखना है. यहाँ पे डिबेंचर डिस्चार्ज हो रहे, देखो थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, 12% debentures of Beta Limited at 10% premium discharged. Aqua Engineers Limited discharged 12% debentures of Beta Limited at 10% premium. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. यहाँ पे 60 प्लस 10%, 60,000 प्लस 10% इसमें लेके जा रहे, तो यहाँ पे आ जाएगा 66,000. तो ये भी टोटल लिख लेते हैं, टोटल बी. तो ये टोटल कितना, 66,000, 37,000 एंड 30,000. हाउ मच इज इट कमिंग. और एक चीज यहाँ पे लिखना है टोटल करने से पहले, परचेज कंसिडरेशन, जिसको हम बोलेंगे बिजनेस परचेज, that is 3,60,000. 3,60,000. देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, वैसे तो टैली होना चाहिए अभी. 37,000 प्लस 30,000 प्लस 3,60,000, ये हो जाएगा 4,93,000. और ये कितना है जरा देखो, ये कितना आ रहा है, 1 लाख प्लस 72,000 प्लस 30,000 प्लस 35,000 प्लस 47,500 प्लस 8,000 plus 20,000, it is coming to 3,12,500. तो डिफरेंस देखो, हमारा क्रेडिट ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इट इज कमिंग टू 3,12,500. पर हमने यहाँ पे गुडविल नहीं लिखा, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे. 3,12,500 माइनस 4,93,000 हमें मिलता है 1,80,500. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. ये कैसे मिला, 4,93,000 माइनस 3,12,500. मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जितना असेट है उससे ज्यादा पे किया. हमने क्या किया, हमारा असेट सिर्फ 3,12,500 का था, या गुडविल भी ले लेंगे फिर भी इट वाज, गुडविल का वैल्यू 20,000 था, नया वैल्यू नहीं दिया था, तो भी इट वुड हैव बीन 3,32,500.
बट फिर भी ये टैली नहीं होता था, तो ये जो डिफरेंस है ये गुडविल है, जो एक्स्ट्रा पे किया है नया कंपनी ने, वो गुडविल के लिए किया। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद चलो हम लोग नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला हेड है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में हम क्या करेंगे, नया कंपनी ने कितना शेयर दिया, नया कंपनी ने बीटा लिमिटेड को 25,000 शेयर्स दिया। ब्रैकेट में देखो पब्लिक इशू भी है, देयर इज अ पब्लिक इशू ऑल्सो। सो व्हाट वी विल डू, 25,000 शेयर्स, और देखते हैं पब्लिक इशू कितने का है। पब्लिक में कितना शेयर्स बेचा, पब्लिक में 10,000 शेयर्स बेचा। पब्लिक में 10,000 शेयर बेचा और बीटा लिमिटेड को 25,000 शेयर्स दिया। तो दोनों को ऐड करो, कितना शेयर कैपिटल रहेगा, और प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, 10,000, तो पूरा मिला के इट इज 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो जाएगा 3,50,000, हमें शेयर कैपिटल मिल गया, इट इज 3,50,000। फिर हमें रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए। वैसे तो नया कंपनी में कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, सारा रिजर्व तो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो गया। देखो जितना भी रिजर्व था, ये सब रिजर्व तो हमने ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे दिया। बट एक इंपॉर्टेंट रिजर्व है यहाँ पे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। एक इंपॉर्टेंट रिजर्व है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, यहाँ पे भी दिया देखो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को और 3 साल मेंटेन करना है। तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को मेंटेन करना है, तो हम अमालगमेशन में एक स्पेशल एंट्री पास करते हैं। वो मैं यहाँ पे वर्किंग में तुम लोग को बता देती हूँ। ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। ये वर्किंग नोट नंबर 2 में व्हाट वी विल डू, फॉर मेंटेनिंग एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हमारा एंट्री क्या होता है, हम एक स्पेशल अकाउंट ओपन करते, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और ये एक्सपोर्ट रिजर्व को क्रिएट करते हैं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इसको क्रिएट करते हैं। तो ये कितने का है, 8,000 का है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितने का है, 8,000 का है। तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट भी उतने के लिए क्रिएट करते हैं। तो ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट को हम ये दोनों को किधर बताएंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व तो रिजर्व है, तो यहाँ पे आना चाहिए, रिजर्व एंड सरप्लस में आना चाहिए एक्सपोर्ट प्रॉफिट। बाकी सब रिजर्व शेयर होल्डर में बांट दिया, लेकिन ये रिजर्व हमें फिर से सब रिजर्व बांट दिया, लेकिन ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हमें क्रिएट करना पड़ेगा 8,000 का, बिकॉज इसको और 3 साल मेंटेन करना है। तो सब रिजर्व तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हमें फिर से मेंटेन करना पड़ेगा। और अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो है, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व या अकाउंट एडजस्टमेंट रिजर्व जो है वो भी इधर आएगा, लेकिन वो हम ब्रैकेट में बताएंगे, बिकॉज वो डेबिट में देखो, और रिजर्व तो लाइबिलिटी है, रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, रिजर्व तो लाइबिलिटी है, तो रिजर्व हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट ये तो डेबिट में है, तो इसको हम ब्रैकेट में बताएंगे। फिर इसके अलावा प्रीमियम में शेयर्स दिया है, शेयर जो है वो प्रीमियम 12 रुपीज प्रीमियम में इशू हुआ है, तो हमारे पास 35,000 शेयर्स है, वो 2 रुपीज के प्रीमियम में दिया। देखो 25,000 शेयर्स बीटा लिमिटेड को 12 रुपीज में दिया, 10,000 शेयर्स पब्लिक को भी 12 रुपीज में दिया। इफ यू डोंट रिमेम्बर, देखो 10,000 शेयर 12 रुपीज में पब्लिक को दिया, और
ये इक्वा लिमिटेड में भी 10 रुपीज का शेयर 12 रुपीज में दिया, तो ये प्रीमियम कलेक्ट हुआ है, तो वो प्रीमियम हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में लिखेंगे, ये हो जाता है 70,000। तो ऐड करो रिजर्व्स, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 8,000 माइनस 8,000 जीरो हो गया, फिर तो सिर्फ 70,000 इधर आएगा, 70,000, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस भी हो गया। अब इसके बाद आता है बी, इसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास 15% डिबेंचर है। द डिबेंचर डिस्चार्ज के एंट्री में जाते हैं, यहाँ पे क्या बोला है दैट 12% बीटा लिमिटेड का जो 12% डिबेंचर है, 12% डिबेंचर, उनको हम 10% प्रीमियम में डिस्चार्ज करेंगे। 60,000 के बदले में उनको 66,000 देंगे 10% प्रीमियम, और बदले में उनको क्या देने वाले हैं, और बदले में हम उनको देने वाले हैं 12 रुपीज का सॉरी कहा गया, उनको बदले में देने वाले हैं 15% डिबेंचर। 12% डिबेंचर के बदले में हम देने वाले 15% डिबेंचर एट 12% का डिस्काउंट। तो इसके लिए हमें वर्किंग में जाना पड़ेगा, वी विल गो टू द वर्किंग। सो थर्ड वन, जो हमारा 12% डिबेंचर्स है वो कितना, 60,000 प्लस 10% प्रीमियम 66,000 का है। 66,000 डिवाइड बाई ये 8, कैसे, ये 12% डिस्काउंट में देने वाले हैं, तो 88 रुपीज में देने वाले, समझ में आया। ये कैसे मिला, 100 रुपीज का डिबेंचर माइनस 12% का डिस्काउंट, तो 88 में देने वाले हैं। तो जरा दिखा करो, 66,000 डिवाइड बाय 88, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना होता है, डिवाइड बाय 88, नंबर ऑफ डिबेंचर इज 750 डिबेंचर्स। 750 बदले में क्या क्रिएट हो रहा है, 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each issued at ₹88। तो यहाँ पे हम लोग जब इधर लिखेंगे 15 पर, इधर इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इधर लिखेंगे 750 इंटू 100, तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा एज हाउ मच, इसको दिखाना पड़ेगा 75,000। जो डिस्काउंट है वो हम अलग से दिखाएंगे, जो डिस्काउंट है वो हम अलग से दिखाएंगे। वो कहाँ दिखाएंगे, आई विल शो यू। सो ये हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है, इधर देखो हमने असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर किया है, असेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। यहाँ पे डिबेंचर्स तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स था, नॉन करंट लाइबिलिटी। फिर हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर्स है जिसको ट्रेड पेबल बोलते हैं, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स है जिसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं। तो ये दोनों 37 और 30,000 के लिए लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल हमने जो नया कंपनी ने लिया है हमें सिर्फ वही लाइबिलिटीज को लिखना है, तो इतना ही लाइबिलिटीज था। बीटा लिमिटेड में जो एक्वा इंजीनियरिंग ने लिया है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 37 and 30,000।
37,000 एंड 30,000। इसको करेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। फिर इसके बाद वी विल गेट द असेट्स। असेट्स में हम लोग बोलते हैं, असेट में हम बोलते हैं नॉन करंट असेट्स, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें हम दिखाते हैं टैंजिबल और इंटैंजिबल। इंटैंजिबल में गुडविल है और टैंजिबल में क्या है? वी विल गो टू आवर थर्ड नोट, टैंजिबल। टैंजिबल में कौन सा असेट्स है जो नया कंपनी ने लिया है? देखो, दो हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख एंड प्लांट 72,000। एक से ज्यादा है तो इधर लिखना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग, 1 लाख एंड प्लांट है हमारे पास 72,000। दोनों को ऐड करो, वी गेट 1,72,000। सो यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट में 1, 2, ये वाला 3, कितना अमाउंट है? 1,72,000। और इंटैंजिबल में हमारे पास गुडविल है। इंटैंजिबल में हमारे पास क्या है? गुडविल है। गुडविल जो है यहाँ पे 1,80,500 इधर है ना गुडविल। हमने इधर पीसी निकालते वक्त फाइंड आउट किया। गुडविल 1,80,500। और यहाँ पे एक और चीज है +3,000। ये क्या है? देखो, डिसोल्यूशन एक्सपेंस किसने पे किया? डिसोल्यूशन एक्सपेंस किसने पे किया? यहाँ पे दिया, देखो, अब्जॉर्प्शन एक्सपेंस। एक्वा लिमिटेड पेड द अब्जॉर्प्शन एक्सपेंस ऑफ ₹3,000। उसका एंट्री क्या है मैं तुम लोग को बताती हूँ। हम लोग जब भी अब्जॉर्प्शन एक्सपेंस नया कंपनी पे करता है ना, तो उसका एंट्री ऐसे लिखते हैं। अगर कैपिटल रिजर्व हमें मिला रहेगा टेकन ओवर ऑफ असेट्स में, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमें गुडविल मिला है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा हमने अब्जॉर्प्शन के लिए खर्च किया? 3,000। और खर्च करेंगे तो क्या बाहर जाएगा? कैश बैंक अकाउंट 3,000। इसको बोलेंगे बीइंग अब्जॉर्प्शन एक्सपेंस पेड, बीइंग अब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस पेड। तो इधर से हमें 3,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो हमारा यहाँ पे गुडविल जो पहले 1,80,000 था, अब्जॉर्प्शन एक्सपेंस पे किया तो 3,000 और बढ़ गया। नहीं तो ये ओल्ड कंपनी भी पे कर सकती थी ये अब्जॉर्प्शन एक्सपेंस। नया कंपनी ने पे किया तो उनको ये एडिशनल खर्चा हो गया, तो इसको हमने गुडविल मान लिया। इसका जो भी अब्जॉर्प्शन एक्सपेंस नया कंपनी पे करता है ना, तो हम गुडविल को डेबिट करते हैं। किसको डेबिट करते? गुडविल को। और क्या बाहर जाता है पे करते वक्त? कैश। तो ऐसे लिखना है। तो इसके बाद हमारे पास स्मॉल बी, हमारे पास यहाँ पे स्मॉल बी बोलते हैं इसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास देखो, पीसी में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 30,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000। और एक चीज यहाँ पे हमें लिखना है, दैट इज नोन एज अदर नॉन करंट असेट्स। यहाँ पे क्या आता है?
यहाँ पे आता है डिस्काउंट, ये फिक्टिशियस असेट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना अमाउंट का डिस्काउंट दिया? 12% का डिस्काउंट दिया। देखो यहाँ पे हमने एंट्री भी, यहाँ पे हमने देखा 750 में 750 डिबेंचर्स को 12 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 750 इंटू 12, 750 डिबेंचर्स को 12 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो 750 इंटू 12 कम्स टू 9000। तो इसके बाद हम आ जाएंगे बी, करंट असेट। करंट असेट में हमारे पास क्या है? स्टॉक है, जिसको हम इन्वेंट्रीज बोलते हैं। फिर हमारे पास बी, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखते हैं वो सब हमने, जहाँ पे टेक ओवर ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी जो न्यू कंपनी ने किया है, स्टॉक 35,000, डेटर 47,500 प्लस 8,000। तो अलग से नोट में मैं नहीं बता रही हूँ, मैं इधर ही दोनों को ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप नोट में भी बता सकते थे। स्टॉक हमें मिला कितना? स्टॉक 35,000 है, स्टॉक इज 35,000। और डेटर कितना है? अभी जैसे हमने देखा डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों को ऐड करने पे ट्रेड रिसीवेबल मिलता है 47,500 एंड 8,000। 47,500 प्लस 8,000 दैट इज डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, दोनों को ऐड किया तो हमें कितना मिलता है? 55,500। और अभी हमें चाहिए कैश बैलेंस। हमारे पास 20,000 का कैश था, हमारे पास कितना कैश था? 20,000। इसके बाद हमारे पास और कैश किधर आया? जब हमने मार्केट में शेयर सेल किया, 10,000 शेयर सेल किया 12 रुपए में, 10,000 शेयर पब्लिक को सेल किया 12 रुपए में, तो हमें 1,20,000 आया। तो मैं वो अलग से अकाउंट नहीं बना रही हूँ, मैं यहीं पे तुम लोग को बता रही हूँ एक्सप्लेन करके। 20,000 प्लस 1,20,000। फिर हमने अभी बोला एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस 3,000 का पे किया। फिर हमने पीसी में, जब पीसी में हमने बीटा लिमिटेड को कितना कैश पे किया? 60,000। कैसे पता चला? 1 मिनट, आई विल शो इट अबाउट पीसी। देखो परचेज कंसिडरेशन देखो, एक्वा इंजीनियर्स लिमिटेड ने 15,000 शेयर को 4 रुपया, दैट इज कितना कैश दिया? 60,000। तो कैश कितना दिया गया? यहाँ पे कैश टोटल कितना गया? पहले 20,000 था जो नया बीटा लिमिटेड से लिया था, 1,20,000 पब्लिक में 10,000 शेयर 12 रुपए में सेल करके मिला, 3,000 का अब्जॉर्प्शन एक्सपेंस पे किया एंड 60,000 पीसी में। देखो किसने पे किया? एक्वा लिमिटेड इंजीनियर्स लिमिटेड ने पे किया, तो इनका पैसा तो बाहर गया। तो हाउ मच बैलेंस ऑफ कैश इज लेफ्ट? बैलेंस ऑफ कैश लेफ्ट इज, बैलेंस ऑफ कैश लेफ्ट इज 77,000. Balance of cash left is 77,000. With this is done. तो टोटल निकालो कितना आ रहा है दोनों का। तो वी आर गेटिंग 5,62,000. वी आर गेटिंग 5,62,000. With this sum is done. Thank you very much everyone.